Hello everyone. So in this video we are going to discuss some mains question जो आपके जो previous year 2021 के questions हैं जो मार्च अटेम्प्ट में है. We will discuss those questions. अभी बाइनरी में questions मैं आपको इसमें ले रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियोस में सब्सिक्वेंट में आपको मैं बाकी अटेम्प्ट्स के भी क्वेश्चंस लूंगा प्लस जो बाकी टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. सो ये आपका एक क्विक रिवीजन होगा बाय ऑन द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बाइनोमियल और इस तरह से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट देन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन March 16 shift 2 paper. Okay, so this question is let n be the positive integer. A is equal to sigma k is equal to 0 to n minus 1 raised to k n c k into 1 by 2 raised to k 3 by 4 raised to k so on 31 by 32 raised to k. And if 63a is equal to 1 minus 1 by 2 raised to 30, then what is the value of n? This is the question here. Okay, अब we can pause this video. जो भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है you can just pause and check the solution. Okay, I'll quickly go through the solution. इसमें आप देखो this question actually similar question has already appeared in exam. ये ऑलरेडी एक बार जेई एडवांस में जो आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन. सो उसी को उन्होंने बस मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन को. तो इफ यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेई तो वहां पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. बट इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे. तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव दिस सिग्मा. ठीक है, आप फर्स्ट जस्ट अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स से यू हैव 1 plus x raised to n. What is the expansion of this? This is NCR x raised to r. And what is the expansion of 1 minus x raised to n? This is sigma minus 1 raised to r NCR x raised to r. Correct? सिर्फ हमने x की प्लेस पे माइनस x रखा. You will get this. So now you see if I have this a for this sigma, this is sigma k is equal to 0 to n. What is the first term? This is minus 1 raised to k NCK 1 by 2 raised to k. I am just opening this sigma plus sigma k is equal to 0 to n minus 1 raised to k NCK and this is 3 by 4 raised to k. हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, सिग्मा को अंदर लेकर चले गए and so on. This is sigma k is equal to 0 to n. This is minus 1 raised to k NCK और ये क्या हो गया 31 by 32 raised to k. तो हमने सिर्फ अभी क्या किया, सिग्मा को ओपन कर दिया. एंड नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व, अगर आप फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टर्म लिख दिया तो सिमिलरली आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म यू कैन इजीली राइट. तो इफ यू जस्ट सी दिस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म? कैन वी से दिस इज minus 1 raised to r NCR 1 by 2 raised to r. ये देखो ध्यान से, दिस इज r is equal to 0 to n. सेम थिंग यहाँ पर है, बस r के प्लेस पर k है. So can we say this is just the expansion 1 minus 1 by 2 raised to n. Check this term. x के प्लेस पर अगर हमने 1 by 2 कर दिया तो you have the first expression. Similarly, what is the second term? अगर आपको first term समझ में आ गया then you can easily get the second term. So what is this? This is 1 minus 3 by 4 raised to n. Next term will be 1 minus 7 by 8 raised to n. And so on. Last term will become 1 minus 31 by 32 raised to n. तो बेसिकली ये जो सिग्मा है इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नाउ यू कैन इजीली राइट 1 by 2 raised to n, 1 by 4 raised to n, 1 by 8, 1 by 8 raised to n, and so on. We have this is 1 minus 1 by 32, that is 1 by 32. This is 1 by 32 raised to n. And now अब आपको क्या करना है, you just solve this. अब how will you solve this? So you can clearly see what is this. This is 1 by 2 raised to n. This is 1 by 2 raised to 2, that is 1 by 2 raised to 2n. This is 1 by 2 raised to 3n. Next will be 1 by 2 raised to 4n and this is 1 by 2 raised to 5. 32 को 2 raised to 5 लिख सकते हैं. अब how will you simplify this? आपको देखो, you can easily solve this because this is a GP. So if I solve this GP, let me write it here. This is A is equal to, what is the
common ratio of this GP, this is equal to first term of GP 1 by 2 raised to n. What is common ratio? You can divide and check. This is 1 by 2 raised to n again, right? So what is the sum of this GP? This is A into 1 minus common ratio 1 by 2 raised to n raised to number of terms. Again, you can see number of terms. You can clearly see the number of terms is equal to 1, 2, 3, 4, 5 terms, right? So this is 1 by 2 raised to n raised to 5. You can see this is A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. This is the sum. If I just simplify this, if I simplify this, you can see this 2 raised to n will be cancelled and you will have 1 minus 1 by 2 raised to n raised to 5 divided by 2 raised to n minus 1. If I just take the LCM, you will find this, right? Now the question was, you have to find the value of n under the condition that 63a is equal to 63. It is given that 63a is equal to 1 minus 1 by 2 raised to 30. 1 by 2 raised to 30. So now you think about this. If you have this expression, what should be the value of n so that this expression is 2? So you can see 63, this is 2 raised to n minus 1a is equal to 1 minus 1 by 2 raised to 5n. 2 raised to 5n. And now what should be the value of n so that this condition is satisfied? You can clearly see n should be equal to 6. Why n should be equal to 6? This is 2 raised to 6 will become 64. 64 minus 1 will become 63. 63a, this is 1 minus 1 by 2 raised to 30. So what is the value of n? This is the value of n. So what is the answer? N is equal to 6 is the answer for this question. So I hope this is clear. ये बहुत easy question था. The only thing is आपको सिर्फ expression को देख कर डरना नहीं है, because ये expression दिखने में बहुत बड़ा है, but it's very easy to simplify this expression. Okay. Now let's move to the next question. Again you can see this expression looks very heavy. कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है? देखो, you have this expression box of x represent the greatest integer function. ये आपको पता ही है. If for n belongs to natural number 1 minus x plus x cube raised to n is equal to j equal to 0 to n 3n sigma a j x raised to j. This is x raised to j. X raised to j. Okay. Then what is the value of this sum? Okay. What is the sum? Sigma. This is j equal to 0 to box of 3n by 2. And this is j equal to 0 to box of 3n minus 1 by 2. Now understand this expression first. So the first expression, understand this first expression. What is the meaning of this? They have just written this expansion in the sigma form. So basically इसका जो expansion बनेगा, what will be the expansion of this? This is 1 plus 1 minus x plus x cube raised to a. अब इसको देखो ओपन करोगे तो you can see j equal to 0 पर this is a0 because x raised to 0 तो 1 ही हो जाएगा. Then this will be a1x. Then it will be a2x square. Then a3x cube and so on. लास्ट टर्म में आप जब पुट करोगे तो j का वैल्यू 3n पुट करोगे तो दिस इज a 3n minus 1 x raised to 3n minus 1, ये सेकेंड लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म a 3n x raised to 3n. तो ये जो लेफ्ट साइड जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज द एक्सप्रेशन. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म प्लस दिस टर्म. अब पहले इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे. ठीक है. नाउ इफ आई स्टार्ट पुटिंग j इक्वल टू 0 1 2 3, तो आप ध्यान से देखो, दिस इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज j इज इक्वल टू 0 टू बॉक्स ऑफ 3n by 2 a 2j. आपने j इक्वल टू 0 पुट किया, दिस विल बी a0. फिर j इक्वल टू 1 पुट किया, दिस विल बी a2. फिर j इक्वल टू 2 पुट किया, दिस इज a4 एंड सो ऑन. अब देखो लास्ट में कहां तक जाओगे. अब लास्ट में तो देखो आप पैटर्न से समझ सकते हो कि पैटर्न क्या है, 0 2 4, तो जो भी लास्ट टर्म होगा दैट विल बी a2 बॉक्स ऑफ 3n by 2. अब अंडरस्टैंड दिस, 3n by 2 बॉक्स का मतलब क्या होगा, 3n by, जैसे आप एक एग्जांपल से कंसीडर करो कि n का वैल्यू लेट्स से आपके पास 5 है, तो 15 by 2 मतलब
7.5, 7.5 का बॉक्स वैल्यू मतलब 7, तो ये कितना 14 टर्म तक जाएगा, बराबर। मतलब इसका अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये सम फाइंड करना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स a0, a2, a4, a3n by 2, बॉक्स ऑफ 3n by 2 का मतलब क्या है, दिस इज इफेक्टिवली कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि n ऑड होगा या इवन होगा। अगर n मान लो 6 हुआ, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर n का वैल्यू 6 हुआ तो n का वैल्यू 6 का मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म क्या बनेगा, देखो 18, 18 by 2 मतलब 9, बराबर, 9 into 2 दैट इज 18, मतलब जो लास्ट टर्म देखो इसमें क्या बन रहा है 18, और इसमें भी क्या आएगा 18 आएगा। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज गिविंग यू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स। अब सेम लॉजिक से कैन वी से द सेकंड टर्म j is equal to 0 to box of 3n minus 1 by 2 a 2j plus 1। अब आप ध्यान से देखो, j equal to 0 पुट करोगे, दिस विल बिकम 1, then 3, then 5 and so on। देखो लास्ट में जब उसको पुट करोगे, दिस विल बी a, अब ये वैल्यू पुट करना है तो आप कर दो, दिस इज 2 बॉक्स ऑफ 3n, लेट मी राइट इट, this is 3n minus 1 by 2 plus 1, मतलब this is representing coefficients of odd power इस एक्सपेंशन में। तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन पावर्स, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड पावर्स, उसका जो भी वैल्यू होगा हम इसमें पुट कर देंगे। नाउ हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इवन पावर, सम ऑफ ऑड पावर, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। एंड नाउ यू सी हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इवन पावर्स एंड ऑड पावर। हमारा क्वेश्चन था ये देखो 1 minus x plus x cube raised to n, इसको एक्सपैंड करोगे यू विल हैव a0 a1 x a2 x square a3 x cube and so on a3n minus 1 x raised to 3n minus 1 and लास्ट टर्म क्या होगा a3n x raised to 3n। यू कैन क्लियरली सी इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3n ही बनेगा। अब if I ask you what is the sum of even power and sum of odd power, तो remember this again, this is very common method and this is very common question also कि कैसे आप किसी भी एक्सप्रेशन में sum of even powers फाइंड करते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन में और odd powers फाइंड करते हो। तो I hope you remember this। If I just put x is equal to 1 and x is equal to minus 1, जैसे आप इसमें x is equal to 1 पुट करेंगे you will find x is equal to 1 पे ये कैंसिल हो गया, this is equal to 1, x is equal to 1 पुट कर दो तो this is equal to 1, this is a0 a1 a2 a3 so on, this is a3n minus 1 plus a3n, and what is the sum, if I put x is equal to minus 1, if I put x is equal to minus 1, this will become, you can see this is 1 plus 1 that is 2, 2 minus 1 that is again 1, so this will become a0, now this will become minus a1 plus a2 minus a3 and so on, this is minus 1, sorry, this is, I'll write this a3n minus 1 minus 1 raised to 3n minus 1 and this is a3n minus 1 raised to 3n. Now why I am writing this as minus 1 raised to 3n minus 1 raised to 3n, because we don't know कि n even है या odd है, जो भी हो ऑटोमेटिकली अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बट हमको उससे क्या मतलब है। अब देखो ध्यान से, इफ आई जस्ट ऐड देम, अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे दिस इज 2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2 टाइम्स a0 a2 a4 और जो भी इसका लास्ट टाइम बनना होगा, भाई इवन में 3n भी इवन हो सकता है या फिर 3n minus 1 भी इवन हो सकता है, जो भी होगा यहाँ पे लास्ट टाइम आ जाएगा। एंड सिमिलरली इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस इज 0, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज 2 टाइम्स a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन, जो भी होगा इसका लास्ट टाइम अपने आप आ जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी वी हैव गॉट व्हाट इज a0 प्लस a2 प्लस a4, दैट इज सम ऑफ इवन पावर्स, सम ऑफ ऑड पावर्स। सो यू कैन सी दिस इज a0 a2 a4 sum of even power, this is equal to 1 and this is a1 plus a3 plus a5 so on, this is equal to 0, right? So now if I put these values here, you can see if I put these values here, what is the answer? This term, the second term is 0 and first term is 1. So now if I put this is 1
and this is 0. So 4 into 0, that will become 0, and this is 1. So what is the final answer? Option 3 is the final answer. That is 1 is the final answer. So I hope this point is also clear. कैसे हमने इसका sum find किया, ठीक है? So और इस पॉइंट का ध्यान रखो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपको सम ऑफ इवन पावर्स, सम ऑफ ऑड पावर्स वो फाइंड करना है. दिस इज हाउ यू फाइंड दिस, ठीक है? ये आपने बाइनोमियल में भी किया, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If n is the number of irrational terms in the expansion of this, then n minus 1 is divisible by. तो बेसिकली आपको अल्टीमेटली n ही फाइंड करना है. n फाइंड करके n minus 1 डिविजिबल किससे, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है? So how will you find rational terms, irrational terms in the expression? Again, this is one very common question for mains exam. ये बहुत बार मेंस में आ चुका है ऑलरेडी, so it's not difficult. बहुत इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो. What is the general term of this series? General term of this series you can say, मतलब उसकी जो terms होंगी वो क्या होंगी? 60 CR NCR x raised to, this is 3 raised to 1 by 4 raised to n minus r, and y raised to r, that is 5 raised to 1 by 8 raised to r. ये अपना इसका जनरल टर्म हो गया. अब इसमें आपको देखो रैशनल टर्म्स और इरैशनल टर्म्स फाइंड करने हैं, तो बेटर क्या है, आप रैशनल टर्म फाइंड करो. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें? 61. आई होप दिस यू रिमेंबर. n plus 1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसमें से वी विल फाइंड हाउ मेनी आर रैशनल टर्म्स, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 61 में से, तो आपको इरैशनल टर्म्स मिल जाएंगे, करेक्ट? अब हाउ मेनी रैशनल टर्म्स यू हैव टू फाइंड, ठीक है? So this is, you can say, अगर कोई भी टर्म होगा तो this is 3 raised to 60 minus r by 4 and this is 5 raised to r by 8. Now for rational terms, देखो ये टर्म तो रैशनल ही है क्योंकि हमेशा एनसीआर तो इंटीजर ही होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, you can say. अब ये रैशनल होना चाहिए और ये रैशनल होना चाहिए, रैशनल इंटू रैशनल, दे विल गिव यू रैशनल टर्म. तो अगर इन दोनों को रैशनल टर्म बनाना है तो यू कैन सी हियर दिस इज 60 माइनस r डिवाइड बाय 4. इट शुड बी इंटीजर, इसको मैं बोलता हूं i1, एंड दिस r बाय 8 शुड आल्सो बी एन इंटीजर. दोनों इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट r हैज टू बी बिटवीन 60 एंड 0. क्योंकि एनसीआर में ये जो एनसीआर में r जो होगा इट कैन बी मैक्सिमम 60 मिनिमम 0. तो अब ये देखो दैट मीन्स फ्रॉम दिस यू कैन सी 60 माइनस r शुड बी सम 4 k1, मतलब 4 i1 लिख देता हूं, 4 k1 4 i1 एंड दिस r शुड बी सम 8 i2, मतलब r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 and 60 minus r should be multiple of 4. Indirectly इसका मतलब ये हो गया. Now r should be multiple of 8. So from this you can see what is the value of r. What can be the values of r? 0. r should be multiple of 8. तो 0, 8, 16 and so on. Last term क्या बनेगा? 60 अगर इसका r का मैक्सिमम वैल्यू तो उसके पहले जो 8 का मल्टीपल होगा that will be 56. So total number of terms कितना हो गया? total number of r values from this. अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस ये सब कुछ लिख दिया, इसमें जितने टर्म्स आ गई, इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गई? इसमें 8 टर्म्स होगी, तो ये आपका आंसर 8 टर्म्स रैशनल टर्म्स बनेगी? नहीं, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इन वैल्यूज के लिए क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो r वैल्यू है उस पे ये टर्म रैशनल नहीं बने, मतलब ये नंबर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बने. अब देखो इसमें इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कोई भी r उठाओ, जैसे आपने r इक्वल टू 0 उठाया, r इक्वल टू 8 उठाया, आप कोई भी नंबर लोगे अगर वो मल्टीपल ऑफ 8 है तो वो मल्टीपल ऑफ 4 तो है. तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो भी नंबर आप पुट करोगे r का वैल्यू वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो मतलब 60 माइनस मल्टीपल ऑफ 4 विल गिव यू मल्टीपल ऑफ 4. ये लॉजिक समझ में आना चाहिए. तो इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पे, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे मतलब हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई? 0, 8, 16, 56, मतलब इन कंडीशन के लिए ये भी ट्रू है. सो दैट इज व्हाई वी कैन एक्सेप्ट
ऑल द वैल्यूज विच आर सेटिस्फाइड हियर, ठीक है, बट ऐसा हमेशा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो नाउ यू से अगर इनमें से आप वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ आर वैल्यूज कितना हुआ 8, यू कैन सी 0 8 16, तो ये टोटल 7 तो ये हो गया प्लस 8, ठीक है। तो 8 वैल्यूज मतलब आर की 8 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज है जिसके करस्पॉन्डिंग द टर्म्स आर रैशनल नंबर। So total number of, you can say number of rational terms in this, rational terms will be 8. So what is the number of irrational terms? Number of irrational terms कितना होगा 61 minus 8. So this is equal to 50 नहीं 53, करेक्ट। तो 53 जो टर्म्स है वो क्या है इसमें इररेशनल टर्म्स है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, n इज द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म, मतलब यही वैल्यू अपना n हो गया, ठीक है। n माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 1 इज 52। क्वेश्चन है n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 26, 7, दिस इज 30 एंड 8, तो ऑब्वियसली दिस इज डिविजिबल बाय 26, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है जहाँ पे रैशनल टर्म्स या रैशनल की टर्म की बात करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स की बात करना है, यू ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, वो इजी होता है, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, बिकॉज हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the fourth term in the expansion of this is 4480, then find the value of x, where x is a natural number. So now again this is very standard question, मतलब इसमें कुछ difficulty नहीं होना चाहिए, you can just pause this video and try. So what is the general term for this? इसको मैं quickly solve कर देता हूँ, tr plus 1 that is 7ncr x raised to n minus r y raised to r. So this is x raised to log x raised to r, right? So now the fourth term of this expansion, तो पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, this is r equal to, क्या फोर्थ टर्म फाइंड करना है आपको, तो r equal to क्या पुट कर देंगे, this is r equal to 3. For fourth term you will put r equal to 3, so this is t4, this is 7c3 x raised to r equal to 3 पुट किया हमने, this is 4, and this is x raised to log x to the base 2 raised to 3. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता हूँ, दिस इज 3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4480, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, मतलब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो नाउ यू सी व्हाट इज दिस, दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू x raised to 4 into x raised to 3 log x base 2, this is equal to 4480. So now if I simplify this further, अब सिर्फ कैलकुलेशन है तो थोड़ा आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे लो, 6 5 4 फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 6, तो बेसिकली 35 ही आ जाएगा, दिस इज 6 बराबर 3 फैक्टर 4 फैक्टर कैंसिल कर ही दिया हमने, x raised to 4 x raised to 3 log x base 2, this is 4480, ये भी कैंसिल कर दो। सो दिस विल बिकम, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, दिस इज क्या आएगा चेक करना एक बार, इफ आई डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 4480 डिवाइड बाय 5 एंड दिस इज 3 6, करेक्ट। सो दिस इज 896, और 896 को भी 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 7 से डिवाइड कर दो, दिस इज 7, दिस इज दिस इज 5, 128, so basically this is 128, easy। तो कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, देखो दिस इज x raised to 4 x raised to 3 log x to the base 2, दिस इज 128, बेसिकली इसको कैंसिल करने पर देखो 128 आ रहा है, बस कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, 128, तो 128 is 2 raised to 7, 2 raised to 7, right, 2 raised to 7, right, 128। अब अगर 128 को आप ध्यान से देखो 2 raised to 7 को, तो ये क्या देखो
मैं हिडन डायल से आपको दिखा देता हूँ इसको सॉल्यूशन। दिस इज 2⁴ 2�3। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर x का वैल्यू 2 होगा, यू कैन क्लियरली सी x का वैल्यू 2 होगा, दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू 2 पे देखो ये 2⁴ हो गया, ये log 2⁻1 हो गया, दिस इज 2�3। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना है, आप करके देख लो। ठीक है, question. So now again this is one very important question and very common question, मतलब ऐसा नहीं this is very common question, ये काफी बार इसमें means में आपको मिलेगा। You have to find the remainder when this number is divided by 17। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है आपने थ्योरी में किया होगा। I just quickly revise this। देखो let's say you have x plus 1 raised to n। ठीक है, so x plus 1 raised to n को अगर आप बाइनोमियली एक्सपैंड करोगे, so this will be some multiple of x plus 1। lambda is some multiple, lambda is some integer I have taken। ठीक है, some multiple of x plus 1। अगर आपके पास जैसे मान लो x minus 1 raised to n है, so this will be some multiple of x plus minus 1 raised to n। ठीक है, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन करोगे this will be nc0 x raised to n, nc1 x raised to n minus 1 minus 1 raised to 1 and so on। अब लास्ट टर्म में जब आप लिखोगे NCN तो क्या आएगा? NCN minus 1 raised to n। अब वो minus 1 raised to n, it can be positive 1 also, negative 1 also, because n can be even or odd। बट इसके पहले जितने भी टर्म्स हैं, you can see all are multiple of x, मतलब सब में x की पावर n, n minus 1 and so on, सब में x की टर्म होंगी। एंड दिस इज नॉट ओनली टू 1 और -1, अगर आपके पास मान लो ऐसा भी है x plus 2 raised to n, तो what is this? This is you can say some multiple of x plus 2 raised to n। अगेन यू कैन सी द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आपके पास -2 होगा, जैसे आपके पास आ गया x minus 2 raised to n, तो यहाँ पे यू कैन से दिस इज सम लैम्डा मल्टीपल ऑफ x प्लस -2 raised to n। अब यहाँ पे जो n होगा अगेन डिपेंडिंग अपॉन इवन और ये -2 हो जाएगा या +2 raised to n हो जाएगा। सो दिस इज वन अप्रोच टू फाइंड सॉल्व द रिमाइंडर क्वेश्चन। तो इस अप्रोच को ध्यान रखो, रिमाइंडर क्वेश्चन इससे मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, so now see we have 2021 raised to 3762। अब इसको हमको डिवाइड करना है 17 से और इसका फाइंड करना है रिमाइंडर। तो अब अगर इसको रिमाइंडर फाइंड करना, तो देखो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये 17 के टर्म में तो है ही नहीं, तो आपको पहले इसको 17 का मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू 17 का मल्टीपल? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू 17 का मल्टीपल? तो अब इसमें देखो ध्यान से 2021, अगर आप इसको 17 की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आप रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा चेक कर लो। सो दिस इज 1, दिस इज 17, so this will be 4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिस इज 32 not 42। so this is again 1, this is 17 and this is 4 and this is 2, that is 141, correct? and sorry 151 correct। and now this is last time क्या हो जाएगा, this is अगर हम एक बार और कर दें, this is कितना हो जाएगा 7, so this is 9 and this is 11। तो ये कितना हो गया, this is 11 में से 2 and this is 4 में से गए तो 3। तो आपके पास अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यू कैन सी वी हैव 2021 कैन बी रिटर्न एज 17 लैम्डा प्लस, ठीक है, मतलब 17 इंटू 117 लिखना है, मैंने 17 लैम्डा लिख दिया बिकॉज मेरे को सिर्फ मल्टीपल ऑफ लैम्डा से मतलब है। यहाँ पे एक काम करो, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज 117 प्लस 32, ठीक है। अब देखो यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 17। अब 17 को 32 से रिलेट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका ये मैं इस टर्म में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसको ध्यान से देखो, कैन वी से दिस इज 2021 इज इक्वल टू 17 इंटू 117 माइनस 34 माइनस प्लस 34 प्लस 34 माइनस 34 प्लस 32। अब मैंने 34 क्यों किया, बिकॉज 34 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, करेक्ट।
So now you see this value is a multiple of 17. Correct? Because 34 is multiple of 17. This is 17 का multiple. So 2021 is 17 lambda. 17 lambda. इसको combine करके I have taken 17 lambda. और ये क्या हो गया? This is -2. I hope you are understanding this कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. And now see if you have this is 2021 raised to 3762. This is 17 lambda minus 2 raised to 3762. This is 3762. अब इसको अगर आप बाइनोमियल एक्सपैंड करोगे और तो ये क्या होगा? तो कैन वी से दिस विल बी सम 17 का मल्टीपल 17k. ठीक है, कुछ भी होगा यहाँ पे, जो भी होगा सब में 17 नंबर्स होंगी एंड प्लस -2 रेज टू 3762. आई होप दिस मेक सेंस. करेक्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था. देखो अब यहाँ पे तो इवन नंबर है तो यू कैन से दिस विल बी सम 17k प्लस 2 रेज टू 3762. एंड नाउ सी अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 17 से तो ये नंबर तो 17 का मल्टीपल है बट इसमें भी तो 17 से कुछ रिमाइंडर बनेगा. तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखो कहां कन्वर्ट कर दिया, 2 की पावर 3762 में कन्वर्ट कर दिया. अब इसमें जो रिमाइंडर होगा 17 से डिवाइड करने पर वही इसका आंसर होगा. तो नाउ द क्वेश्चन कन्वर्ट्स कि अब 2 रेज टू 3762 करेक्ट. इसको अगर हमने 17 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर. तो अब इसको हम 17 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. अब 17 में कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान से देखो 17 और 16 बहुत इजीली दे आर वेरी क्लोज. 17 माइनस 1 इज 16 करेक्ट. और इस नंबर को हम 16 की फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज वी नो 2 रेज टू 4 इज 16. तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 रेज टू 4 के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो अब 2 रेज टू 4 में कन्वर्ट करना तो इजी है. कैसे? अब ये नंबर 4 का मल्टीपल तो नहीं है बिकॉज 62 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. तो हमने क्या किया, इसको लिखा 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 3760 so that this number is multiple of 4. And now what is this? This is 2 raised to 2, 2 raised to 4. अभी चेक करो, if I divide 3760 by 4, this is 936. This is 1, 4 and this is 940. Correct? 4 हमने अंदर ले लिया. ठीक है, तो 4 आप मल्टीप्लाई करके you can easily check this. So basically what is this expression? This is 2 raised to 2, that is 4. And this is 16 and 16 ko you can say this is 17 minus 1 raised to 940. And now you can see we have got this is 4 and now you can clearly see what is this. This is 17 multiple, let's say this is some multiple of 17 mu. एंड -1 रेज टू 940 होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, +2 की पावर इवन पावर. सो बेसिकली दिस इज 4 into 17 mu plus 4. Now you can see this is the multiple of 17 and what is this? This is the remainder. So what is the remainder when this number is divided by 17? The answer is equal to 4. So I hope this point is clear. हमने फर्स्ट स्टेप में इसको नंबर्स को रिड्यूस किया और सेकेंड स्टेप में उस रिड्यूस नंबर का हमने रिमाइंडर फाइंड किया बाय 17. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी रहते हैं बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे मेंस में. इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक काम करते हैं, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फ्रॉम दिस ऑनवर्ड बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मार्च सेशन क्वेश्चन क्योंकि इसमें फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो फॉर द सबसिक्वेंट क्वेश्चंस.